Hello students, welcome all of you. Today we can see the derivative of implicit function, its basic concepts only. Now before starting the actual syllabus or actual part of the derivative of implicit function, first of all we can see which useful information we want to solve any type of the multiple choice questions in MSTCET. पर MSTCET में जो MCQ एग्जाम्पल का डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से आंसर लिखने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट से जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट लिखा है एक्चुअली मेन पार्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव एक्चुअली। पर इम्प्लिसिट अंडरस्टैंड होने के लिए हमें एक्सप्लिसिट से जाना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? इफ सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मीनिंग क्या होता है? y इज अ फंक्शन ऑफ x मीन्स व्हाट? y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। एज x चेंजेस y आल्सो चेंजेस। पर y x पे डिपेंड है। पर ये जो प्रोसीजर है y is a function of x, it is called y is explicit function of x. पर explicit equation, now I can take one example. If suppose x square plus x plus 1, now this total term containing three terms which containing x and 1, now it should be written as y. पर y x पे है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? It is called explicit equation or explicit function. Now implicit means what? Function containing x and y both, not y as in terms of x. Function containing x and y both, एक ही इक्वेशन में दोनों वेरिएबल होना चाहिए। I take that is of the form fxy equal to 0. fxy का मीनिंग क्या होता है? Function containing not only x and not only y, function containing both variable x and y, and if it is equal to 0 means it is implicit equation. And if suppose fxy equal to x square plus xy plus y square, it is called implicit function. And if it is equal to 0, it is called implicit equation. पर इसका मीनिंग होता है, in short, if equation containing only one variable and that should be written in terms of x as y, then that is called explicit equation. And about the explicit equation we can get straight way dy by dx. y x पे है ना, y x पे, इसका मीनिंग क्या होता है? dy by dx लेफ्ट पे और राइट हैंड साइड का स्ट्रेट में इसका डेरिवेटिव मिलेगा। नाउ इट इज इजी टू फाइंड dy by dx फॉर explicit function, but about the implicit function, function containing or equation containing suppose x square plus xy plus y square equal to 0, now it is implicit equation, means equation containing x and y both variable. Now it is called implicit equation. Now we can see इक्वेशन इम्प्लिसिट रहा तो उसका डेरिवेटिव निकालने की प्रोसीजर क्या है, सेकंड पार्ट पे हमें देखना है। पर ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है क्योंकि इक्वेशन में दोनों वेरिएबल है। पर इसके लिए क्या करना है, जैसा एक्सप्लिसिट में लेफ्ट पे y रहा तो dy by dx निकालना डायरेक्टली स्ट्रेट में, उसका प्रोसीजर निकालना सिंपल होता है। पर यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों वेरिएबल है, पर दोनों वेरिएबल x भी है और y भी है। x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा और y का विथ रिस्पेक्ट टू x नॉट 1, इट इज dy by dx, that is by composite function. Now we can see second concept, how to find dy by dx about such implicit equation. इसमें क्या करना है? डिफरेंशिएट ईच टर्म सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू x, सभी का सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और xy का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x और y के बीच में प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x का 1 होगा और y स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 2y dy by dx इक्वल टू 0. Now what is the procedure? First step, differentiate each term with respect to x, and then second step is dy by dx terms are combined in the left hand side. x dy by dx और 2y dy by dx में से एक ही जगह पे लेता हूँ और दोनों में से dy by dx कॉमन निकालता हूँ और ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म x रहा यहाँ पे और प्लस 2y रहा। टेकन dy by dx in the left side and without dy by dx terms are transferring to the right side, that is minus 2x or minus y. Then we can get dy by dx straight way, minus 2x and minus y total divided by x plus 2y.
पर ये जो dy by dx निकाला मैंने implicit इक्वेशन का dy by dx. Again I am telling, first differentiate each term separately with respect to x, taking dy by dx combined in the left hand side, and without dy by dx terms are transferring to the right side, and we can get straight away derivative of implicit equation. This is the method, this is the procedure to find derivative of y with respect to x about the implicit equation. पर थर्ड में क्या देखना है हमें, थर्ड में यहाँ पे लिखा मैंने डेरिवेटिव ऑफ सर्कल का ध्यान में रखना है. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सेंटर 0 0 एंड रेडियस a. इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली मिलेगा ना. डेरिवेटिव मीन्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई dx, और a स्क्वायर इज ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. पर इससे 2y डिवाइड बाई dx का वैल्यू मिलेगा माइनस 2x. देयरफॉर डिवाइड बाई dx इज माइनस x डिवाइडेड बाय y. नाउ रिमेंबर अबाउट द सर्कल, टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बाय शॉर्टकट मेथड. पर ये जो बीच में स्टेप्स लिखा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है. तुम्हें सर्कल का डायरेक्टली dy by dx माइनस x by y ध्यान में रखना है. पर इसी तरह पैराबोला का, इसी तरह पैराबोला. व्हाट इज द पैराबोला? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द पैराबोलास. फर्स्ट टाइप, पैराबोला टचिंग y एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ये जो फॉर्म है इसमें x और y दोनों है. इसका मीनिंग हुआ स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ऑफ विच टाइप? इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट इक्वेशन टाइप. पर इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई dx, और 4ax में से 4a कांस्टेंट और x का 1. पर इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? डिवाइड बाई dx इक्वल टू 4a अपॉन 2y, मीन्स इट इज 2a अपॉन y. दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ पैराबोला. पर इसी तरह एलिप्स का भी होना चाहिए और हाइपरबोला का भी होना चाहिए. ये जो बेसिक पार्ट मैंने इस वीडियो में बताया, मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालने के लिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए प्रोसीजर मैंने बताया. मैं इस प्रोसीजर से जाना पड़ेगा. पर इसी तरह पैरामीट्रिक फंक्शन का भी होना चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का होना है. सभी पार्ट में एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू, बेसिक पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी क्लियरली. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में पैरामीट्रिक फंक्शन का बेसिक पार्ट देखेंगे. थैंक यू.